अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी हमारे अपने कुलगुरु प्रोफेसर के.जी. सुरेश सर ने की। मैं चूंकि मुझे कहा गया है कि मैं पूरी 5 दिन की संक्षिप्त रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करूं, ये 5 दिन कैसे निकल गए ये भी हमें समझ नहीं आया, क्योंकि लगातार बिल्कुल टाइट शेड्यूल था। और सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग कोई 5 इस तरीके के 5 दिन का आयोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये संभावना रहती है कि कोई एक आध हमारा स्पीकर ड्रॉप आउट होगा, लेकिन हम लोग इसमें भी सौभाग्यशाली रहे कि हमारा एक भी स्पीकर ना हमें बदलना पड़ा और जिनसे हमारी बातचीत हुई थी, जिनसे टाइम फिक्स हुआ था, उन्हीं स्पीकर्स को हम आपके बीच ला पाए। मैं मुकुल भाई साहब आपको बताना चाहूंगा, लगभग इसमें हमारे पास 200 प्रतिभागी थे, जो एक AICTE का मैडम जानती है 200 की लिमिट है, वो लिमिट हमारी पूरी हो गई थी। उसके बाद हमने 50 का एक्सटेंड करने का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो AICTE का क्योंकि अपना एक नियम है उसके तहत वो एक्सटेंड नहीं हो पाया, तो 200 प्रतिभागी इसमें लगातार हमारे साथ बने रहे। अब मैं एक एक दिन की संक्षिप्त में रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। On day 1, that is 13th September, we have inaugural session. As I have told that the chief guest was His Excellency Arif Mohammad Khan Sahab, Governor of Kerala, and guest of honor was Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Higher Education Minister of MP, and that program is presided by our own Honorable Vice Chancellor Professor K.G. Suresh sir. On the second day, in all we have total 15 sessions in 5 days. So in the second day, on the same day, sorry, this is inaugural session. Then on the same day, second session was taken by Professor S.S. Bhakar. He is Vice Chancellor, ITM University, Gwalior. He spoke on ABC implementation, methodology, new paradigms. He focuses on credit transfer and credit depository scheme in higher education. He also said about various online courses are started from students where credit will be allotted. We tried to cover each and everything which is in the NEP. तो हम लोगों ने इस तरीके से 5 दिन में कोशिश की इन 15 सत्रों में कि NEP को लेके हर विषय हम इसको कवर कर पाएं। On the first day only, the last session, that is third session, was headed by Dr. Mazhar Asif, Professor JNU. He explained the significance of teaching pedagogy for quality education. He focuses on effective implementation of NEP curriculum designing for academic excellence. Then on the second day, first session was taken by Professor K.G. Srinivasa. He is Professor NITTR, Chandigarh. He focuses on ICT tools and learning management system. He shares certain ICT tools with participants for better learning and classroom management. On the same day, second session was taken by Dr. Gurudatt JP. He is professor and head Gujarat University, who focuses on strategies for reforms in universities and department. That is, especially focuses on NAAC and IQAC. He discussed documentation for IQAC and NAAC significance. On the second day, last session was taken by Professor K.K. Sharma. He is former Vice Chancellor, MDS University. He shared his thoughts on NEP 2020 with focus on research and innovation. He explained significance of research in universities for global ranking. Then on the third day, that is 15th of September, the first session was taken by Mr. Rajiv Agrawal. He is a very good motivational speaker and he talks about managing stress to enhance quality education. Then on the same day, second session was taken by Professor Sanjeev Singh. He is Professor, University of Delhi. He focuses on innovative trends in assessment and education in blended learning process. Then on the third day, last session was taken by Professor C.P. Agrawal. He is with us only. He talks about yogic energy empowerment for holistic development through 7 chakras.
Then on the fourth day, that is 16th of September, first session was taken by Honorable our own Vice Chancellor, Professor K.G. Suresh sir. He gives his deliberation on NEP media education. Then on the same day, second session was taken by Dr. Madhvi Reddy. She is Professor NIT Warangal. She focused on new avenues and role of faculty in effective implementation of NEP. Then on the fourth day, third session was taken by Professor Parag Dubey. He is Professor NIT TTR Bhopal. His topic was leadership and excellence in NEP. Then today we start with the deliberation of Jayant Solwalkar ji. He is Vice Chancellor, Bhoj University, and who focuses on the topic NEP in transforming teaching education. Then we had a exam session, and now we are in the valedictory session, and we have with us the eminent scholar, we can say that, who is leading the NEP, Shri Mukul Kanitkar ji with us, and Dr. Mamta Agarwal ji. She is from AICT. So I welcome all you and our own Professor K.G. Suresh sir, Vice Chancellor sir. So I welcome all on behalf of Department of Management and MCU Bhopal. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for giving us a brief report about the 5 days FDP program. In further moving, I would like to invite today's special guest, Dr. Mamta Agarwal, madam. But before hand over the mic to you, ma'am, I would like to give a brief introduction about you. Mamta Agarwal, ma'am, is presently working as Advisor 1 in AICTE and is former Additional Secretary, Association of Indian University, AIU, Joint Secretary, University Grant Commission, UGC, and Director Education, New Delhi. She is also from the first batch of Lady Pilot Officer in Indian Air Force. Agarwal ma'am has been an international speaker at the School of International and Public Affairs, University of Columbia, New York, on urban education innovation in K-12. Also presented the country in the Global Summit on reforming school system in global cities, New York. She has been part of many academic delegations and conferences and published papers. Agarwal ma'am is His Excellency the President of India's nominee on the Board of Governors of National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Kolkata, an institute of national importance. Additionally, she is a member of Board of Governors of many universities and colleges. Ms. Agarwal ma'am has been an expert member on the task force on the implementation of new education policy, AICTE, and Government of Gujarat. She is a resource person on many academic subjects, including national education policy, benchmark and global ranking, academic bank of credit, gender inclusion, and women empowerment. Madam, you are the best example for women empowerment. With this thought, I would like to welcome you in the family of Mathanlal Chaturvedi, National Institute of Journalism and Communication. Very warm welcome you, ma'am. Hand over to you. धन्यवाद। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ही शायद कहा था, आज हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही शुभ दिन है, जब हमारे तेजस्वी, हमारे ओजस्वी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। आइए हम सब मिलकर नव भारत के शिल्पकार को, और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनके हृदय के बहुत ही करीब है, उनको उनके जन्म दिवस पर चिरायु होने की और अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरुआत आज का करें। आदरणीय मुकुल जी भाई कानितकर, जो राष्ट्रीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और आज के आपके इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं।
Professor K.G. Suresh, Distinguished Vice Chancellor of Makhanlal Chaturvedi National University. We have Professor Vajpayee ji with us and all other esteemed colleagues. जो AICTE की जो अटल अकेडमी है वो एमर्जिंग एरियाज पे जो टेक्नोलॉजी के बहुत ही निश और एमर्जिंग एरियाज हैं उसमें पूरे देश में जितने भी हमारे कॉलेजेस में टीचर्स पढ़ाते हैं उनको एमर्जिंग एरियाज का, और वो एमर्जिंग एरियाज हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सभी और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अधिक विषयों पर उनको बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देती है। और आपको ये जानकर हर्ष होगा, खुशी होगा और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मेरे बहुत ही सहकर्मी बहुत वर्दी दत्ता जी, अमित दत्ता जी जो मेरे डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हम इस वर्ष 2 लाख से ज़्यादा जो हमारे टीचर्स हैं उनको हम ट्रेन करेंगे। और हमने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है और जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है वो हमें 25 सितंबर को इसके लिए सम्मानित करने जा रहा है। तो टीचर्स को हम ये एमर्जिंग एरिया की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। तो मेरी आप सभी से एक बहुत आग्रह है और बहुत बार मैं सुनती हूँ कि हम इसे नई शिक्षा नीति कहते हैं, परंतु इसका सही नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो कृपया इसे ध्यान में रखें और ये मेरा आग्रह है कि हम इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा नीति बहुत ही एक खूबसूरत, बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये ही जो है हमारे लिए सबसे कठिन कार्य है या सबसे ज्यादा जो है हरक्यूलियन टास्क जिसे हम कहेंगे। क्या आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप मेरा स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं तो एक बार बता दीजिए प्लीज। जी मैडम देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं। So I would yes ma'am, it is visible. It is visible ma'am. All right. So basically the government under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji approved National Education Policy in July 2020. The new policy aims to pave way for transformation reforms in not only higher education but even in school education, technical education, teachers education. And it is one policy which has been formulated after an unprecedented, collaborative, inclusive, and highly participatory consultation process, even up to grassroots level. लगभग 2 लाख consultations सभी stakeholders के साथ किए गए थे. Again, see, it tries, and the policy's main objective endeavor is that we create competent global citizens, but they should remain deeply, deeply rooted in our country's old traditions, our value systems. So this policy document is quite an enriching composition, catering to all stakeholders, be it academic leaders, faculty, students, community, researchers, industry, everything. The policy also envisions a complete overhaul and re-energizing of the higher education system. It has identified the existing challenges, and it has also tried to address all those challenges. अब हमारी जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है, कुछ चीजें जो है हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके परव्यू में है, और कुछ चीजें जो है इंस्टीट्यूशंस जो है, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले से भी कहा गया है, भारत में एजुकेशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, अभी भी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ही रहेगी। सिर्फ एक है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो राष्ट्र के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है और दोनों का दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों का विषय है, तो दोनों मिलकर और दोनों फिलांथ्रोपिक डोनेशंस को मिलाकर और अपने एल्यूमिनाई को और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंडस्ट्री को मिलाकर कम से कम ये कोशिश करें कि हमारे जो जीडीपी है उसका 6% हम करें। तो एक एफर्ट हम सबकी तरफ से ये होगा कि किस प्रकार से हम अपने एल्यूमिनाई का नेटवर्क, किस प्रकार से हम अपने स्टेट गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज को इस प्रकार से पूल इन करें कि हम ज्यादा से ज्यादा फंडिंग हायर एजुकेशन के लिए जो है हम जुटा पाए। इसके बाद जो बेसिकली आता है, जो मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ,
एक इसमें एक बहुत ही एम्बिशियस, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इस स्कीम में कहा गया है that gross enrollment ratio, which existingly is roughly 26.3, maybe it is inching towards 27%. It must be increased to 50% by 2035. So another 14 years, we have to go for almost 23% of expansion. तो उसके लिए हम सभी को और हमारे ये एक कोशिश होगी और ये करना होगा कि किस प्रकार से हम हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाएं, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसी में हम और कैपेसिटी बढ़ाएं, क्या हम उसी में और एक से ज्यादा सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, क्या हम ब्लेंडेड मोड में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि काफी जो ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको हम प्रेफरेबली थ्योरेटिकल मोड में पढ़ाएं और जितने भी हमारे प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आकर ऑफलाइन फिजिकल मोड में पढ़ाएं। तो इस प्रकार से क्या हम ब्लेंडेड में 20% ऐसा कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि किस प्रकार से हम अपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो इसकी एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई थिंक ये एक चीज है जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें एक ऐसा हायर एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो लार्ज हो, जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो और कम से कम हर जिले के पास कम से कम, और स्पेशली जो कुछ हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा है, मुख्यतः उनके पास एक जो है लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो और जो है उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो पढ़ाने का तरीका है वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज हो। मध्य प्रदेश के में वो हिंदी हो सकती है या हिंदी है या आपकी और भी कोई रीजनल लैंग्वेज है। इसके लिए जो एक बहुत ही जरूरी चीज है कि हम अपने रिसोर्सेज की क्लस्टरिंग करें, अपने रिसोर्सेज की शेयरिंग करें और जो हमारी एग्जिस्टिंग यूनिटरी यूनिवर्सिटीज हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशनल क्लस्टर में बदलें। अब ये कहना बहुत आसान है, बट अगर आप देखें तो एक यूनिवर्सिटी में भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में रिसोर्स शेयरिंग नहीं करते हैं, वो आपस में अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दूसरे के साथ अलाइन करके मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च नहीं करते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में कम से कम एक डीन कोऑर्डिनेशन बनाया जाए या अगर वहाँ पे वाइस चांसलर के अलावा कोई प्रो वाइस चांसलर है तो वो ये काम ले सकते हैं या वाइस चांसलर किसी को डेजिग्नेट कर सकते हैं जो कम से कम ये सुनिश्चित करे कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच रिसोर्सेज की शेयरिंग हो, उनके बीच एक इंस्टीट्यूशनल डिपार्टमेंटल क्लस्टर बने और इसी प्रकार से इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी जो इसका हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन मुद्दा है वो हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। अगर आप इसे बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो मेरा ये सुझाव होगा, क्योंकि मैडम ने नहीं बताया है पर मैं 2 स्टेट्स की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का हिस्सा हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो वहां पर हमारा ये सुझाव रहा कि हम इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक कंसोर्शियम बनाएं। एक ही जैसे कि मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में आपकी एक रेडियस के अंदर, मान लीजिए आप जो भी रेडियस आप लेना चाहें, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऑफ कोर्स इट शुड बी रीचेबल एंड एक्सेसिबल रेडियस, उसमें जो आपके यूनिटरी है कि एक लॉ का एक कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है, एक आपका मेडिकल का कॉलेज है, किस प्रकार से आप जो है उनका एक कंसोर्शियम, एसोसिएशन, जो भी आप कहें, जहां पे उनका जो हेड है, जो डायरेक्टर है, जो वाइस चांसलर है, वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा, परंतु रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए और जो है सारे के सारे अपने इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च करने के लिए, उनके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के थ्रू एडमिशन एक दूसरे को देने के लिए, इस प्रकार से हम जो है एक में जा सकते हैं ताकि इससे कम से कम खर्चे में ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होकर वी कैन गेट होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन। जब आप होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो एक चीज बहुत जरूरी है जो मुझे आपको समझानी चाहिए कि इसके लिए आपको यूनिफॉर्म एकेडमिक फंक्शनिंग करनी होगी। जब आप यूनिफॉर्म एकेडमिक फंक्शनिंग की बात करते हैं तो इसका ये होगा कि सारे इंस्टीट्यूशंस को साथ बैठकर
एक राज्य में या एक ही राज्य के अंदर जो आपके एक यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें साथ बैठकर, कि आपका सेम एकेडमिक कैलेंडर हो, सेम टाइम पे आपके एडमिशंस कमेंस हो, आपका जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर है वो सेम हो, आप सेम जितना कंटेंट है उसको आप सेम क्रेडिट्स असाइन करते हो। भाई अगर एक यूनिवर्सिटी है वो उसे 40 क्रेडिट्स असाइन कर रही है उसी कंटेंट को, और दूसरी यूनिवर्सिटी 28 क्रेडिट्स असाइन कर रही है, तो ना तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पॉसिबल हो पाएगा, ना ही जो आपकी मोबिलिटी है, वेदर यू टॉक अबाउट वर्टिकल मोबिलिटी और you talk about horizontal mobility, both would not be possible. So for making this, you will have to make sure that all the resources are sharing. There is a universities or colleges network or institutional association. There is a consortium. You may even sign MOUs for all these multidisciplinary and interdisciplinary approach. Now, this culture of empowerment and autonomy. See, it has already been said that the concept of affiliated colleges will soon be phased out. तो अब वो यूनिवर्सिटी जो पूरी तरह से अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस पर आधारित है, फीस के लिए आधारित है और उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो इन पर आधारित है, तो सबसे पहले तो उन यूनिवर्सिटीज को ये एक रिवर्क करना होगा, अपना एक SWOT एनालिसिस करना होगा कि बेसिकली वेयर आर दे हेडिंग फॉर. Do they want to be a teaching university? Do they want to be a research university? Because affiliating university would be phased out eventually. अब मैं आती हूँ जो colleges हैं उन्हें क्या करना चाहिए. See, colleges will have to carry out a phased manner analysis. क्या उनके strengths हैं, क्या उनके weaknesses हैं, क्या उनके पास opportunities हैं और क्या उनके serious challenges हैं. उसी प्रकार से कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज को अपने अंडर में आने वाले सभी कॉलेजेस का जो है एक ये करना चाहिए कि उनकी हैंड होल्डिंग करें, एक मेंटोर मेंटी का एक एस्टैब्लिशमेंट करके किस प्रकार से हम उन्हें दे सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ब्रॉस बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक यूजी एजुकेशन. इसमें फ्लेक्सिबल करिकुला, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, ये सारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इन्हें किया जा सकता है. अब ये आप सभी लोग जानते हैं कि यूजी पीजी दोनों में, यूजी में 3 से 4 साल, पीजी में 1 से 2 साल, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. ये सारे प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं. तो जब हम ये कहते हैं तो इसके लिए इंस्टीट्यूशंस को क्या करना होगा. इंस्टीट्यूशंस को हर साल का करिकुलम इस प्रकार से डिजाइन करना होगा कि वो अगले साल पर ओवरलैपिंग ना हो, अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो, अपने आप में संपूर्ण हो. उसी प्रकार से आपको ये देखना होगा कि किस प्रकार से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरे वर्ष चले, ताकि एक जो आपकी वर्टिकल और आपकी जो हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सिबिलिटी है वो आप मेंटेन कर सके. क्योंकि अगर एक बच्चा जो है दूसरी साल में एडमिशन लेना चाहता है तो आपका दूसरे साल के लिए एडमिशन खुला होना चाहिए, चौथे साल में लेना चाहता है तो उस साल के लिए आपका खुला होना चाहिए. टीचर्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर्स के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और इसके लिए जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें अपने जो उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको इस प्रकार से ध्यान में रखना है कि ना मुझे सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा होना है, परंतु मुझे अपने जो रिसर्च है उस पर भी फोकस करना है. और मुझे जो मेरा एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है कि मैं अपनी पढ़ाई के द्वारा सोसाइटी को क्या दे रही हूँ, कम्युनिटी को क्या दे रही हूँ. तो जो 4 कंपोनेंट है जो टीचर्स है उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करें, ताकि एकेडमिक्स, रिसर्च, टीचिंग, पब्लिक सर्विसेज और इसमें सारा जो है हम एक तालमेल बैठा सके. यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को एक काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फास्ट ट्रैक प्रमोशंस की बात हुई है, टीचर्स के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात हुई है, कि वो ये निश्चित तौर पे तय करें कि जो भी उनकी गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है या जो ऑर्डिनेंसेस हैं, स्टैट्यूट्स हैं, उसमें वो मॉडिफिकेशंस करें ताकि बहुत ही आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मिंग टीचर्स को आप फास्ट ट्रैक या आउट ऑफ ट्रैक जो है किस प्रकार से आप दे सकते हैं, किस प्रकार से आप प्रमोशन उन्हें दे सकते हैं और उन्हें जो लीडरशिप का जो एक लैडर है उसमें पढ़ने में, उसमें आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं. अब ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कैसे हो सकती है मैंने काफी डीप में कवर किया है. और इसी में जब हम डिपार्टमेंट के बीच में भी वी कैन थिंक ऑफ
कि मेरा ये डिपार्टमेंट, मेरा फिजिक्स डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, so can I really utilize my physics department for ensuring that I get the competitive funding, or can the physics department do the hand holding for another maybe nanotechnology department? So it is a cascading, a collaborative approach which we really need to take on. हर यूनिवर्सिटी को अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, जो उसके चारों तरफ का वातावरण है, उसमें ये देखना होगा कि कहाँ पे हमारे सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स हैं, चाहे हम विलेजेस को अडॉप्ट करें, चाहे हम श्रेष्ठ भारत अभियान की बात करें या एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत की बात करें, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार के हैं, किस प्रकार से हम उनमें पार्टिसिपेट करके अपनी कम्युनिटी आउटरीच बढ़ा सकते हैं, जो जेंडर वाला जो हमारा एक एम्पावरमेंट है वो कर सकते हैं, कैसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही क्विकली ये कहना चाहूंगी कि मैंने दोनों स्टेट्स में जहाँ पे मैं मेंबर थी वहाँ ये कहा है कि एक स्टेट लेवल पर भी एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम होनी चाहिए जो फाइनली नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का हिस्सा हो जाए। परंतु जो स्टेट एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मध्य प्रदेश एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम होती है, तो क्या हर यूनिवर्सिटी का अपना एक टेक्नोलॉजिकल फोरम हो सकता है जो स्टेट के साथ कनेक्टेड हो और स्टेट नेशनल के साथ कनेक्टेड हो? और जब आप इन हाउस इंडिजिनस की बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो उसको एडटेक से, कंटेंट डेवलपमेंट से लेके उसका जब आप एक डिलीवरी कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में और उसका आप एक ऑनलाइन मोड में वर्चुअल असेसमेंट कर रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए आपको मैंडेटरीली जरूरत है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में मैं यही कहूंगी, इसको मैं राज्य स्तर पे मानती हूँ कि राज्य स्तर पर एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट डेवलप होनी चाहिए जो हर यूनिवर्सिटी के ये बताए कि उसकी खासियत क्या है, उसमें जो है कितने स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स जो आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी योर मोस्ट वोकल स्पोक्स पर्सन। और उसमें हम किस प्रकार से जो हमारी विशेषताएं हैं, योगा है, आयुर्वेदा है, वैदिक मैथमेटिक्स है, जो हमारे अपने ज्ञान है, हमारा रिच कल्चरल और हेरिटेज है, कैसे हम उसे पॉपुलराइज करके वी हैव टू आइडेंटिफाई। हम सारी कंट्रीज से शायद बच्चे नहीं इनवाइट कर पाएंगे कि विच आर द कंट्रीज विच वी कैन रियली इनवाइट। आई थिंक एकेडमिक गवर्नेंस एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो आई वुड नॉट से बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सीडेड माई टाइम। I would just stick to this slide that AICT ने 11 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में टेक्निकल की सारी जो किताबें हैं उन्हें 11 भाषाओं में एज इट इज अनुवाद कर दिया है, उनका ट्रांसलेशन कर दिया है। और अभी यूजी के लिए किया, इसके बाद डिप्लोमा पर जाएंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज पर जाएंगे। और AICT ने एक AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडिजिनस ट्रांसलेशन टूल भी विकसित किया है, जिससे कि सभी बच्चों को जो तकनीकी शिक्षा पा रहे हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन में है, अपनी भाषा में, अपनी रीजनल भाषा में जो है वो शिक्षा को पा सकें। बस इसमें एक सेंटेंस की, अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिच हेरिटेज और कल्चर है उसको हमें वैलिडेशन के बाद डिजिटली प्रिजर्व करके अपनी आने वाली जो हमारी अगली संस्कृति है, जो हमारी अगली जनरेशंस हैं, उनके लिए प्रिजर्व करके मासेस तक पहुंचाने की जरूरत है। कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी जैसे यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली आपके जो पुराने हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं, उन प्राचीन ग्रंथों को और उनका कंप्यूटर के साथ किस प्रकार से लिंकअप करके कुछ आप टेकअप कर सकते हैं। आपकी जो भी मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी सी कविताएं हैं या रिच कल्चरल हेरिटेज है, उनका किया जा सकता है। आई थिंक मैं बाकी अपना सारा का सारा स्किप करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने समय सीमा से को कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो एक बार फिर से मेरा आप सभी लोगों को बहुत ही हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और हम सब लोग हर स्तर पर मिलकर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्तर से लेकर राज्य स्तर के बाद राष्ट्रीय स्तर तक मिलकर जब प्रण करेंगे, जब साथ आएंगे, जब साथ जुड़ेंगे, तभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूर्ण तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना संभव होगा। और शायद आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर हमारी तरफ से उन्हें ये सबसे श्रेष्ठ उपहार होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार। माखनलाल चतुर्वेदी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल की ओर से हमारे बीच आने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ओर
और अच्छे से प्रकाश डालने के लिए और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को वापस से दोहराने के लिए हमारे बीच। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी मैडम, हमारे माननीय कुलपति महोदय की जो लीडरशिप है वो इतनी एक्सीलेंट है। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, वी हैव ऑलरेडी डन वेरियस एमओयूज विद अदर यूनिवर्सिटीज, और वो इसलिए किया गया है ताकि हम मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट कर पाए, स्टडीज को प्रमोट कर पाए, so that we can work on minimum expenses and maximum utilization of our resources. In further moving of the program, हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि के रूप में मुकुल कानिटकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है दोबारा से माखनलाल यूनिवर्सिटी में हम सभी के बीच में। सर, आपसे एक छोटा सा परिचय सभी के बीच रखना चाहूंगी। आप एक ओजस्वी वक्ता हैं, लेखक हैं, खासकर युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर आपने कई पुस्तकों का लेखन किया है। आप शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय संगठन अखिल भारतीय शिक्षा मंडल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। भारतीय दृष्टि से अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना के पीछे भी आपकी ही योजना एवं मार्गदर्शन है। आपने लंबे समय तक विवेकानंद केंद्र में पूर्णकालीन रहकर युवाओं के बीच काम किया है। विवेकानंद फाउंडेशन दिल्ली के आप सचिव भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में। नमस्कार सर। तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्पनैमुढम्। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म तो व्यर्थ का परिश्रम और अन्य सभी विद्याएं तो मात्र कारीगरी है। आज के इस समापन समारोह के आदरणीय अध्यक्ष माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु के.जी. सुरेश जी, आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती ममता अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, आचार्य वृंद और इस कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्ता विकास के लिए जो लोग जुड़े थे। मुझे प्रारंभ में अविनाश जी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 200 लोगों के लिए ये कार्यशाला ली गई। अभी मुझे 94 लोग दिख रहे हैं हम तीनों को मिला करके, तो लगभग 90 लोग अभी बचे हुए हैं वैलिडिक्टी तक। तो उन सब लोगों को अभिवादन करता हूँ। यहाँ भी लोग बैठे हैं काफी संख्या में। अच्छा, ठीक है, फिजिकली बैठे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिजिकली बाकी लोग बैठे। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, यह विषय लेकर के 15 सत्रों में विभिन्न विषयों को आप लोगों ने सुना है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा परिवर्तन गत वर्ष भारत में हुआ। वैसे तो सन 2020 को सब लोग भूलना चाहते हैं और आप सबके पास भी आए होंगे, व्हाट्सएप पर इस प्रकार के संदेश आ रहे थे कि भगवान 2020 को डिलीट कर दो क्योंकि इसमें वायरस है। ऐसी बातें लोग कह रहे थे, किंतु एक दो ऐसे ऐतिहासिक काम हुए 2020 में कि जिसने 2020 को चिरस्मरणीय बना दिया। और लगभग एक सप्ताह के अंदर ही दोनों काम हुए थे। 29 जुलाई 2020 को 5 वर्ष और 4 महीने 6 महीने की तपस्या के बाद, लगभग 5.5 वर्ष की तपस्या के बाद तैयार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत सरकार की मंत्रिपरिषद ने स्वीकार किया और उसकी घोषणा हुई 29 जुलाई 2020 को। लोग पूछते हैं कि शिक्षा नीति लागू कब होगी? 29 जुलाई 2020 को लागू हो गई। अब तो उसके क्रियान्वयन के विविध पड़ाव में एक एक करके जो जो आवश्यक परिवर्तन है वो करते हुए क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया। लागू तो उसी दिन हो गई क्योंकि उसके दूसरे ही दिन गैजेट नोटिफिकेशन से मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया। इसलिए 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश में लागू हो गई। अभी उसके लिए आवश्यक जो विधिक परिवर्तन होने हैं, जो बिल आदि आएंगे, जो एक्ट बनने हैं,
यूजीसी एआईसीटी को मिला करके और 4 अलग वर्टिकल बना करके हेकी का बनना है, वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की भी प्रक्रिया चल रही है। किंतु 5 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 17 जनवरी 2015 को तत्कालीन मंत्री, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसके अंदर 33 बिंदु 33 पॉइंट्स सारे समाज के सामने रखे गए थे कि इन 33 बिंदुओं पर सारा समाज, पूरा भारत अपना मंतव्य प्रकट करे और उस विमर्श के बाद में उस आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना। उस समय उन्होंने नई शिक्षा नीति शब्द प्रयोग किया था 2015 में, जिस समय पहली बार 33 बिंदु दिए गए थे। और सारे विश्व में न भूतो न भविष्यति, न भविष्यति में इसलिए कह रहा हूं कि इतना बड़ा एक्सरसाइज फिर से होगा कि नहीं होगा इसके बारे में शंका है, किंतु न भूतो ये तो पक्का है कि आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी भी नीति के निर्धारण के लिए लगभग 33 करोड़ पीपल, व्यक्तियों के सहभाग से एक अत्यंत महत्वपूर्ण गंभीर ऐसा विमर्श, चिंतन, चर्चा, अनेक प्रकार के सुझाव आए, शास्त्रार्थ हुए, वाद विवाद हुए, परिचर्चाएं हुई। 5.5 वर्ष तक ये काम चला। पहले TSR सुब्रमण्यम समिति बनाई गई थी, जिन्होंने उन 33 मुद्दे पर आए हुए लाखों, उस समय मुझे ध्यान है कि 1,44,000 के लगभग सुझाव सारे देश भर में से आए थे। उस समय के शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर आए थे, कुछ माईगोव जो सरकारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर आए थे, और उन सबका लगभग 1,44,000 उन सुझावों को और पढ़ने के बाद में और बाकी बहुत सारे लोगों से सीधा विमर्श करने के बाद में TSR सुब्रमण्यम समिति ने अपनी बहुत बड़ी लगभग 600 पृष्ठों की ऐसी एक विस्तृत आख्या इन सुझावों की बना करके दी। वो नीति का ड्राफ्ट नहीं था, उसमें नीति के तत्व भी नहीं थे, किंतु सारा भारत क्या कह रहा है कि उसको किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था चाहिए। 180 देशों की जनसंख्या से अधिक लोगों ने, इतनी जनसंख्या भी नहीं है 180 देशों की दुनिया में, उससे अधिक लोगों ने सुझाव दिए, विमर्श में हिस्सा लिया। 2 लाख से अधिक गांवों में चर्चा के कार्यक्रम हुए और भारतीय शिक्षण मंडल जैसे अनेक संगठनों ने भी अलग ढंग से, सामाजिक संस्थाओं ने भी अलग ढंग से काम किए। लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसे क्लब ने भी काम करे। सभी विश्वविद्यालयों ने अलग अलग प्रकार के सेमिनार, वेबिनार और न जाने क्या क्या आयोजन किए। 44,000 से अधिक महाविद्यालय हमारे देश में हैं, उन सारे लगभग महाविद्यालयों ने कम से कम एक तो कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में किया। ऐसे विमर्श के बाद 29 जुलाई 2020 को सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जब दूसरी समिति, जिसको ड्राफ्ट्स कमेटी कहा गया था, अभिलेखन के लिए, वास्तविक नीति को लिखने के लिए, जो दूसरी समिति हमारे देश के अत्यंत प्रभावी और अत्यंत अग्रणी ऐसे वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में जब दूसरी समिति बनाई गई, ये जुलाई 2017 में इसका गठन हुआ था। उस गठन के समय इसको, जब क्षमा करें, मार्च 2018 में इसको मैंडेट दिया गया था, और जब इसका गठन हुआ तब मुझे बहुत आनंद हुआ कि भारतीय शिक्षण मंडल लगातार ये कह रहा था कि नई शिक्षा नीति, इसको कहना ठीक नहीं है। मैंने स्मृति ईरानी जी और प्रकाश जावड़ेकर जी दोनों शिक्षा मंत्री होते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में उनके साथ मंच साझा करते हुए प्रत्यक्ष उनके सम्मुख ये बात रखी थी कि नई तो हर 10 साल बाद पुरानी हो जाती है। आज जो नई है 10 साल बाद पुरानी हो जाएगी, इसलिए इस देश को नई शिक्षा नीति नहीं चाहिए, इस देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहिए। 12 जुलाई 2017 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के नाते पहली बार प्रकाश जावड़ेकर जी किसी पब्लिक फंक्शन में आए थे। वो भारतीय शिक्षण मंडल का और भारत नीति का संयुक्त आयोजन था। उस कार्यक्रम में मैंने उनको कहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करने को अधिकारी भी विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी फाइलों का गड़बड़ नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एब्रीविएशन NEP होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी NEP होगा,
इसलिए अधिकारियों को भी झंझट नहीं होगा, सारी फाइलें वैसी ही रहेगी। इसलिए आप इसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर दीजिए। और वास्तविकता में जब कस्तूरी रंगन समिति बनी तब पहली बार उस पत्र में जो कस्तूरी रंगन समिति को टर्म ऑफ रेफरेंस दिए गए थे, उनको कार्य जब बताया गया था, उस पत्र में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस शब्द का प्रयोग हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और भारतीय शिक्षण मंडल ने TSR सुब्रमण्यम समिति के सामने भी अपना निवेदन प्रस्तुत किया था। 48 पृष्ठों की एक पुस्तिका हमने तैयार की थी। हमने उसको राष्ट्रीय शिक्षण रूपरेखा ऐसा ही नाम दिया था। और ये हमने 1974 से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना ही इस काम के लिए हुई थी। पहला इसका ड्राफ्ट, इसका पहला प्रारूप 1974 में तैयार हुआ था। फिर 1986 में जब यशपाल जी के नेतृत्व में समिति बनी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए जिस समय नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उस समय भी भारतीय शिक्षण मंडल ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उस शिक्षा नीति की समिति को, यशपाल समिति को दिए थे। उसके बाद में 1992 में जब उसका प्रोग्राम फॉर एक्शन बना, 1992 में उसके क्रियान्वयन के लिए जब कार्य योजना बनी, उस कार्य योजना में तो भारतीय शिक्षण मंडल के महामंत्री, तत्कालीन महामंत्री उसका हिस्सा थे, उस कार्य योजना समिति का, रामस्वरूप भारद्वाज जी। तो भारतीय शिक्षण मंडल 1974 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप पर काम कर रहा था। 2014 में हमने, जनवरी 2014 में, सत्ता परिवर्तन से पूर्व ही भारतीय शिक्षण मंडल ने राष्ट्रीय शिक्षण रूपरेखा की और न्यूनतम आवृत्ति की पुस्तक सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया और सारे भारतवर्ष में उसके ऊपर चर्चा की। 4.25 लाख से अधिक लोगों से हमने प्रतिभाव प्राप्त किए, अभिमत प्राप्त किए, ओपिनियन प्राप्त। और उस फीडबैक के आधार पर, उस प्रतिभाव के आधार पर और अपनी पूरी की पूरी अनुशंसाएं व्यवहारिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से उनका समर्थन करते हुए, जस्टिफिकेशन देते हुए पूरे तर्क के साथ TSR सुब्रमण्यम समिति के सामने भी प्रस्तुत की। हम प्रत्यक्ष जाकर के मिले थे। उन्होंने कहा था 5 मिनट में अपनी बात पूरी करो, और जब चर्चा शुरू हुई तो 50 मिनट तक वो चर्चा करते रहे। इतने अभिनव और इस प्रकार के सुझाव दिए गए थे भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा। और कस्तूरी रंगन समिति के साथ में तो लगभग 3-4 बार मिलना हुआ और उसके बाद में फाइनल 66 पृष्ठों का जो ड्राफ्ट बना है, उस ड्राफ्ट के एक एक शब्द के ऊपर और शास्त्रार्थ करने का अवसर मिला। मंजुल भार्गव जी एक एक शब्द के लिए हम भिड़ते थे। जैसे अभी ममता दीदी के वाक्य बोलने में स्टेक होल्डर शब्द आया, हमने इसके ऊपर बहुत विवाद किया कि यह शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। शिक्षा जगत में स्टेक होल्डर शब्द गलत है। स्टेक होल्डर तो जुआ खेलने वालों को कहते हैं, दाव लगाने वालों को कहते हैं। स्टेक होल्डर वो होता है जो दाव लगाता है। जब माइनिंग सबसे पहले शुरू हुआ था तो माइनिंग स्टेक्स लोग खरीदा करते थे कि यहाँ पर माइनिंग करो, वहां पर सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां पर और ऑयल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां से स्टेक शब्द आया। इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। हमने आग्रह किया पार्टनर्स ऑफ एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाए। हमारे जैसे शिक्षा जगत में जितने सहभागी है वो उनको भागीदार कहा जाए, स्टेक होल्डर ना कहा जाए। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे जिस उद्योग में जाकर के, जैसे आपका पत्रकारिता विश्वविद्यालय है तो सारे मीडिया के लोगों के पास आपके विद्यार्थी जाएंगे, जाकर के वहां काम करेंगे, तो वो आपके पार्टनर्स ऑफ एजुकेशन बनने चाहिए, स्टेक होल्डर नहीं। ऐसे एक एक शब्द के ऊपर हमने बात किया, एक एक शब्द के ऊपर चर्चा की। लिबरल आर्ट्स एजुकेशन के ऊपर तो इतना अधिक विवाद हुआ था। और अभी आप उसको यदि देखेंगे तो 66 पृष्ठों का जो अंतिम वो अभिलेख तैयार हुआ है, डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, अंग्रेजी में 66 पृष्ठों का है, हिंदी में 104 पृष्ठों का। हालांकि अनुवाद गूगल से करने के कारण इतना अच्छा नहीं है, तब AICT का ऐप तैयार नहीं था, इसलिए वो अनुवाद इतना अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन तो अंग्रेजी वाले 66 पृष्ठों में आपको लिबरल एजुकेशन शब्द मिलेगा, लिबरल आर्ट एजुकेशन शब्द नहीं मिलेगा। इसके ऊपर विवाद किया गया, इसके ऊपर चर्चा की गई। इसलिए अत्यंत तपस्या के साथ और कड़ी परिश्रम के बाद में एक एक बात को ध्यान में देते हुए और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक एक शब्द की रचना हुई है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, पूछूंगा नहीं। मैं शिक्षक स्वाध्याय लेता हूं तो उस समय शिक्षकों को कहता हूं कि छात्रों से हाथ ऊपर मत करवाया कीजिए। हाथ ऊपर प्रश्न पूछने के लिए करे तो अच्छा है, उत्तर देने के लिए हाथ ऊपर करवाना मैं अपमानजनक मानता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से भी हाथ ऊपर नहीं करवाऊंगा ये प्रश्न पूछ करके। लेकिन आत्मावलोकन कर लीजिए, शिक्षा जगत में कार्य करने वाले हम लोग हैं और 1 वर्ष से ऊपर हो गया, हम में से कितने लोगों ने
66 पृष्ठों के उस अभिलेख को, मूल मात्र को, एक्चुअल को, ओरिजिनल को कितने लोगों ने पढ़ा है? हमको उसको आद्योपांत पढ़ लेना चाहिए। केवल 66 पृष्ठ है। आप सारे इतने सारे लिखते हैं और पढ़ते हैं, आपको 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे पढ़ने में। लेकिन मैं पूरे देश में प्रवास करता हूं, हमने नीति आयोग के साथ लगभग 600 वेबिनार इस बात पर किए, रोल ऑफ टीचर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़े बड़े संस्थानों के कुलगुरुओं ने और निदेशकों ने यह शिक्षा नीति के मूल अभिलेख को पढ़ा नहीं है। वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो बहुत स्पष्टता से नीति में लिख दिए हैं, नीति में जिसके बारे में पूरी स्पष्टता दी गई है, लेकिन वो शंका के रूप में पूछते हैं। तो मैं उनको कहता हूं, अरे आपने पढ़ा ही नहीं। पॉइंट नंबर 14 पढ़िए, तो उसके अंदर आपको इंक्लूसिवनेस के सारे पॉइंट मिलेंगे। लोग आरोप लगाते हैं कि दुर्बल घटकों के लिए इसमें कुछ नहीं है। पूरा 14 में मतलब पहली बार इतना, जिसको कहना चाहिए, मैंने चमसाहार शब्द दिया है संस्कृत में, उसको अंग्रेजी में जिसको आप स्पून फीडिंग कहते हैं, इतना जबरदस्त चमसाहार तो कभी नहीं हुआ सरकारी किसी अभिलेख में जितना इस शिक्षा नीति के 14वें पॉइंट में हुआ है। 12 बिंदु सीधे सीधे दिए गए जो इंस्टीट्यूशन को करने इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, सर्वसमावेशी शिक्षा के लिए। और फिर भी लोग लेख लिखते, आरोप लगाते हुए लेख लिखते कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समाज के दुर्बल घटकों के लिए कुछ नहीं करती है। जबकि छठे बिंदु में, छठा अध्याय जो है वो स्कूल शिक्षा में सर्वसमावेशकता के ऊपर, और 14वां अध्याय यह हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में सर्वसमावेशकता पर बिंदुवार, एक एक बिंदु, मतलब जो बात कार्य योजना में होनी चाहिए थी, प्रोग्राम फॉर एक्शन में होनी चाहिए थी, वो नीतिकर्ताओं ने नीति में डाल दी इस बिंदु के ऊपर। ऐसे अनेक बिंदु है जिस पर इतनी स्पष्टता नीति बताती है, उसके बाद भी बड़े बड़े राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के निदेशक उसके बारे में शंका के साथ प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हमने 66 पृष्ठ पढ़े नहीं। जो हमारे देश का आने वाले 50 वर्ष तक शिक्षा का भविष्य बनाने वाले हैं, उन 66 पृष्ठों को हमने पढ़ा नहीं। इसलिए जिस ऋषि तपस्या के साथ, जिस ऋषित्व के साथ कस्तूरी रंगन जी की समिति ने काम किया, वो 10 के 10 एक एक ऋषि थे। वसुधा कामत जी की तपस्या, आप में से जो लोग उनके जानते हैं उनको पता है। कस्तूरी रंगन जी की स्वयं की तपस्या, एम के श्रीधर जी की तपस्या, मंजुल भार्गव की तपस्या, वो सारे के सारे लोगों ने तपस्या की। उनके साथ काम करते समय इतना आनंद आता था, जब कस्तूरी रंगन जी को कोई बिंदु समझ में आता था, ऐसे जोर जोर से ताली बजाते थे बालवत। अरे ये तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ऐसे करके उठ करके खड़े होकर ताली बजाते थे। तब लगता था ये वास्तविकता में ऋषि कैसे रहे होंगे हमारे। वैसे अत्यंत, जिसको कहना चाहिए कि परिश्रम के साथ, बहुत लगन के साथ इस काम को किया। वहां छत्तीसगढ़ में बरेली, अपना मध्य प्रदेश में बरेली है, वो छत्तीसगढ़ में जाकर के, रायपुर से बरेली जाकर के वहां के जैन साधु को मिलने के लिए कस्तूरी रंगन जी स्वयं गए, क्योंकि जैन साधु पैदल चलते वहां जा नहीं सकते थे। ये जो अद्भुत कार्य इस शिक्षा नीति में हुआ है, क्रियान्वयन, और वह भी उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए यदि आपने ये 5 दिन का कार्यक्रम किया, 15 सत्र किए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए सभी 200 लोगों को जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसको सुन रहे हैं, इन सबका कर्तव्य बनता है कि हम भी ऋषि बने, हम भी तपस्या करें, और तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सच्चे अर्थ में क्रियान्वित हो सकती है। 70% इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाग खास करके उच्च शिक्षा में ऐसा है कि जिसको सीधे सीधे विश्वविद्यालय लागू कर सकते बिना सरकार की प्रतीक्षा के, राज्य शासन या केंद्र शासन की प्रतीक्षा किए बिना सीधे सीधे शासन। और मध्य प्रदेश में तो शासन ने लागू भी कर दी। अभी 11 तारीख को इंदौर में डॉक्टर मोहन यादव जी साथ में थे, तब वो बता रहे थे, और उन्होंने ये भी शुभ समाचार दिया कि अब मध्य प्रदेश में सारे कुलगुरु कहना प्रारंभ हो जाएगा विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को। तो ऐसे अच्छे काम मध्य प्रदेश तो कर ही रहा है, इसलिए वहां राज्य शासन भी आपके साथ है। हरियाणा में भी जब ये 30 जुलाई 2021 को क्रियान्वयन की घोषणा हुई, उस कार्यक्रम में भी मैं वहां पर था, तो सारे राज्य भी इसको कर ही रहे, और राज्य नहीं भी करे तो विश्वविद्यालय बहुत कुछ कर सकता है। जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात बताई, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के लिए, और हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज को काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अपना सारा जो पूरा
पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीओरिएंट करना पड़ेगा, उसका अभिमुखीकरण बदलना पड़ेगा। और समग्रता को लाने की बात, होलिस्टिक सिलेबस की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। वह समग्रता लाने के लिए जीवनोपयोगी कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। भारत बोध के 100 मार्क के पेपर की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। इसकी राष्ट्रीयता के अनेक बिंदु है, हम उसको लागू कर सकते हैं। बाद में सरकार यदि और कोई गाइडलाइन देती है तो उसको करेंगे, लेकिन तब तक हम तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन लेवल पे 5 साल का भारत बोध का पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में ये सिखाया जाएगा, सेकंड ईयर में ये सिखाया जाएगा। उसको वहां अंग्रेजी में उन्होंने नॉलेज अबाउट इंडिया ये शब्द प्रयोग किया है, लेकिन हम भारतीय शिक्षण मंडल में उसको भारत बोध पाठ्यक्रम कहते हैं। उच्च शिक्षा में वो कह रहे कि हर वर्ष वो होना चाहिए। स्कूल शिक्षा से शुरू कर रहे हो, वो 6ठी कक्षा से भारत बोध शुरू होगा और उच्च शिक्षा में भी लागू होगा। इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका क्रियान्वयन हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। और मैं तो आगे जाकर के कहता हूं, शिक्षक को तो विश्वविद्यालय की भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। शिक्षक तो अपनी कक्षा का राजा होता है, चाहे प्रत्यक्ष कक्षा हो चाहे ऑनलाइन कक्षा हो। आप उस कक्षा में क्या बोलते हैं उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ना प्रधानमंत्री बता सकते हैं, ना शिक्षा मंत्री बता सकते हैं, ना एनसीईआरटी बता सकती है, ना यूजीसी बता सकती है। आपकी कक्षा में आप तय करते हो कि आप किस प्रकार से विषय को लोगे। इसलिए ये स्वायत्तता तो सदा से रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह स्वायत्तता बढ़ा दी है क्योंकि लचीलापन बढ़ गया। इसलिए प्रत्येक शिक्षक यदि अध्येता हो जाए, उपाध्याय हो जाए, अध्ययनशील हो जाए, आचार्य हो जाए, ऋषि हो जाए, अपने आचरण में लाने लगे, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राष्ट्रीयता का क्रियान्वयन कक्षाओं में प्रारंभ हो जाएगा। प्रतीक्षा नहीं करनी है, कोई और क्या करेगा, हम प्रारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं जब शिक्षकों से बात करता हूं तो वो कहते हैं, विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं से बात करता हूं तो वो कहते हैं, राज्य शासन ने कुछ बताया नहीं, हम क्या करें, इन प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूजीसी ने भी कोई गाइडलाइन नहीं भेजी है। ये शब्द, ये उत्तर मिलते हैं। मैंने शिक्षकों को कहा आप पढ़ लीजिए, आप अपनी कक्षा में प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन इतनी निराशाजनक, हतोत्साहित करने वाली बात समझ में आती नहीं, जब सरकार कहेगी तब करेंगे। ये प्रतीक्षा करने वाला ऋषि नहीं हो सकता। ऋषि तो नेतृत्व करने वाला होता है। प्रधानमंत्री जी ने शब्द प्रयोग किया था, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, हम राष्ट्र जागरण करने वाले शिक्षक हैं। पुरोहित शब्द का ये अर्थ है जो आगे चलता है, पुरोहित जो आगे ले जाता है, जो आगे चलता है, जो अग्रज है, आगे जाने वाला है। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन नाम का जो ऋषियों का संदेश है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, उसमें भी शब्द प्रयोग किया, एतद् देश प्रसूदस्य सकाशात अग्रजन्मना, हम अग्रजन्मना है, हमको आगे बढ़कर के काम करना है। शिक्षक को प्रतीक्षा नहीं करनी कि विश्वविद्यालय बताएगा, यूजीसी बताएगी, एआईसीटी बताएगी, शिक्षा मंत्रालय बताएगा, राज्य सरकार बताएगी। जीआर की प्रतीक्षा करने वाला शिक्षक नहीं हो सकता, वो शिक्षा कर्मी ही हो सकता है, वो कर्मचारी ही हो सकता है जो आदेशों का पालन करता है। शिक्षक तो स्वयं प्रेरणा से काम करता है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्रियान्वयन यदि होना है तो वो शिक्षक के हाथ में होना चाहिए। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल को जब नीति आयोग ने अपने सीएसओ कमिटी में लिया, कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की कमिटी में लिया, बहुत सारे लोग थे, बाकी सारे लोगों ने तो अपने अपने हिसाब से बिना फील्ड में गए, बिना क्षेत्र में गए, जो काम हो सकता है घर में बैठ के वो करने का दायित्व ले लिया। किसी ने कहा हम ईसीसी का पाठ्यक्रम बना देंगे, किसी ने कहा हम एग्जिस्टिंग आपकी योजनाओं की समीक्षा कर देंगे। जब भारतीय शिक्षण मंडल की बारी आई तो हमारे प्रतिनिधि महेश दाबक जी ने कहा कि हम शिक्षकों के बीच में जाकर के क्रियान्वयन की बात करेंगे। नीति आयोग ने कहा आप कितने जिलों में जाएंगे, हमने कहा 500 जिलों में जाएंगे। तो फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष बोले 500 क्यों, पूरे 750 जिलों में जाओ। तो हमने तय किया 750 वेबिनार करेंगे और जिसके अंदर रोल ऑफ टीचर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका, ये काम किया। 547 547 वेबिनार हो चुके हैं और 750 हम करने वाले हैं। 1 लाख शिक्षकों से सीधा संपर्क भारतीय शिक्षण मंडल ने किया क्रियान्वयन के लिए, क्योंकि हम मानते हैं शिक्षक तय कर ले तो क्रियान्वयन हो जाएगा, सरकार करे ना करे। और शिक्षक यदि इस शिक्षा नीति को अपना करके, मेरा मान करके निर्णय ना करे क्रियान्वयन का, तो सरकार माथा पटक ले कुछ नहीं कर सकती, चाहे जिसकी सरकार। शिक्षक की ताकत इतनी बड़ी है
इसलिए शिक्षक को मन बनाना पड़ेगा, शिक्षक को ऋषि बनना पड़ेगा। अंतिम केवल जो बिंदु महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि गुणवत्ता का अर्थ भी समझना पड़ेगा। यूजीसी ने लर्निंग आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क 36 विषयों का तैयार कर लिया। 73 का करना है, उसमें से 36 का तैयार हो गया, 37 का बचा है। 36 सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क, करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होकर के यूजीसी की वेबसाइट पे, हिस्ट्री वाले की अभी बड़ी चर्चा हो रही है कि हिस्ट्री को एकदम ठीक कर लिया। अंडर ग्रेजुएट हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से प्रोपोर्शनेटली पूरे अनुपात के अनुसार इतिहास को बताया जाएगा, सभी कालखंडों का। ये बात हो गई। ऐसा काम यूजीसी कर रही है, लेकिन जब तक हिस्ट्री का शिक्षक अपनी कक्षा में उसको नहीं लागू करेगा तब तक आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क आउटकम नहीं दे सकता। आउटकम तो शिक्षक के हाथ में ही है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब हम बात करते हैं, लर्निंग आउटकम की हम बात करते हैं, तब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया है। रीडिफाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन। पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 शुरू होने से पहले लगभग 2.5 पृष्ठ यह विजन ऑफ एनईपी दिया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है, किस दर्शन पर यह काम करती है। और पहली बार किसी शासकीय और अभिलेख के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर हम ऐसी बातें देखते हैं जिन बातों में राष्ट्रीय जीवन ध्येय की बात की जाती है, शिक्षा के राष्ट्रीय ध्येय की बात की जाती है, मनुष्य के व्यक्तिगत के स्थान पर सामाजिक ध्येय की बात की जाती है, राष्ट्रीय चिंतन की बात की जाती है, पर्यावरण की चर्चा की बात की जाती है। ऐसी एक समग्र दृष्टि को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात कर रही है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते समय जिस विष्णु पुराण के श्लोक से मैंने प्रारंभ किया था, जिसको भारतीय शिक्षण मंडल में हम ध्येय श्लोक कहते हैं, उस ध्येय श्लोक में परिभाषित शिक्षा का उद्देश्य इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य में प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एज ओल्ड सनातन इटर्नल विजन ऑफ भारत इज रिफ्लेक्टेड इन दिस एनईपी। भारत की सनातन परंपरा में जो शिक्षा का दर्शन है, वह शिक्षा दर्शन इस राष्ट्रीय सच्चे अर्थ में, केवल अखिल भारतीय नहीं है, सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय, ऐसी यह शिक्षा नीति है। उसकी राष्ट्रीयता उस उद्देश्य परिवर्तन से। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार करते समय तीनों स्तरों पर विचार करने की आवश्यकता है, जो भारत का आदर्श रहा। अंतिम आदर्श तो है मुक्तकरी शिक्षा, सा विद्या या विमुक्त है। जो मुक्त करती है वही शिक्षा है, वह अंतिम आदर्श है। लेकिन उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए 2 और आदर्श शिक्षा के उद्देश्य के रूप में हमारी परंपरा में रखे गए, हमारे ऋषियों ने रखे हैं। उसके नीचे का दूसरा, एक 1 स्टेप बिलो मुक्तकरी, लिबरेटिंग एजुकेशन के नीचे, मुक्तकरी शिक्षा के एक चरण नीचे जो शिक्षा का दूसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हमारे संस्कृत भाषा में हमारे ऋषियों ने कहा युक्तकरी शिक्षा। युक्तकरी, एजुकेशन दैट एम्पावर्स, दैट एनेबल्स, आपको युक्त बनाती है, योग्य बनाती है। विद्यार्थियों को योग्य बनाने वाली शिक्षा होगी तो वो मुक्तकरी शिक्षा हो सकी। इसलिए मुक्तकरी, युक्तकरी और तीसरे सबसे नीचे के स्तर पर बहुत आवश्यक उद्देश्य, जो आज हमने सबसे ऊपर रख दिया था अभी तक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उस शीर्षासन को ठीक किया। मुक्तकरी, युक्तकरी, फिर अर्थकरी। अर्थकरी भी होनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा उत्पादक बनाने वाली होनी चाहिए। इस प्रकार का विद्यार्थी बने कि जो प्रोडक्टिव हो। ऐसे प्रोडक्टिव विद्यार्थी का निर्माण करने वाली शिक्षा, वह अर्थकरी शिक्षा। मुक्तकरी शिक्षा, युक्तकरी शिक्षा, अर्थकरी शिक्षा, इन तीनों स्तरों पर गुणवत्ता वृद्धि करने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। एक और बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में न भूतो है। 70, अभी तो 75 वर्ष हो रहे हैं, अगले वर्ष 75 वर्ष का हमने अमृतोत्सव प्रारंभ कर दिया। हमारी स्वतंत्रता का अमृतोत्सव हम और उसको मना रहे हैं। उस अमृतोत्सव के अवसर पर पहली बार स्वतंत्र भारत के अंदर एक ऐसा नीति का अभिलेख आया है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया है, जिसके अंदर अंग्रेजी के डॉक्यूमेंट में, इंग्लिश डॉक्यूमेंट में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वाला जो अध्याय है, उसका जो बिंदु है, उस बिंदु में
अंग्रेजी में विश्व गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां पर इंटरनेशनलाइजेशन का एम बताया है, वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उस बिंदु में अंग्रेजी में विश्व गुरु शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ, जो भारत का ध्येय है। 21 जून 2015 को योग के माध्यम से उसका एक लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। अब दूसरा लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, जब विश्व के सभी देशों में, अफ्रीका के देशों में, एशिया के देशों में, अमेरिका के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी देशों में भारत के दूतावास के बाहर लोगों की पंक्ति लगे भारतीय विश्वविद्यालयों में और प्रवेश लेने के लिए, जैसे नालंदा के लिए वेटिंग लिस्ट लगती थी, वैसे जब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के लिए प्रतीक्षा सूची बनेगी, केनिया में, रवांडा में, इथियोपिया में, पेरू में, ब्राजील में, लिथुआनिया में और बेल्जियम में, हॉलैंड में, नीदरलैंड्स में, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार में एमसीयू में एडमिशन के लिए भारत के दूतावास के बाहर लोग आकर के खड़े हैं। ये करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है। ये विश्व गुरु का लक्ष्य है। इसलिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में इस विषय पर ध्यान देने वाला, और आपके एलुमनी उसमें आपके काम आएंगे, आपके पूर्व छात्र उसको काम में आएंगे। सारे विश्व में आपके पूर्व छात्र फैले हुए, उनके माध्यम से आप विद्यार्थी बढ़ाइए। हमारे भारत के अनेक अच्छे शिक्षाविद आज विदेशों में जाकर के पढ़ा रहे हैं, उनको वापस लाइए। भारत पुनः विश्व गुरु बनाना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है, और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से हो सकता है। और इन तीन स्तरों पर हमारी शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण बने, यह क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। और क्रियान्वयन शासन पर निर्भर नहीं करता, क्रियान्वयन का पूरा दायित्व हमारे ऊपर है, शिक्षकों के ऊपर है। We are accountable and responsible for the implementation of national education policy because we are the real pillars of education. हम शिक्षा के स्तंभ है, सच्चे अर्थों में शिक्षाविद शिक्षा के स्तंभ है, सच्चे अर्थों में शिक्षक शिक्षा के स्तंभ है। इसलिए उनको अपना दायित्व लेना पड़ेगा। और इसलिए मैं अपनी बात को वहीं पर समाप्त करता हूं, जो मैंने बार बार दोहराया। ऋषियों की तपस्या से निर्मित इस राष्ट्र में ऋषियों जैसे ही तपस्या से निर्मित शिक्षा नीति, सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सौभाग्य से हमको प्राप्त हुई है। हम सबको शिक्षक बन करके उसका, हम सबको ऋषि बन करके उसका क्रियान्वयन करना है। इस संकल्प को आज के दिन दोहराए, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका ओजस्वी भाषण सुनकर आज यहाँ आना सार्थक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ममता मैडम आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रही थी। अभी आपका माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने ऊर्जावान उद्बोधन के लिए। और बिल्कुल शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो युक्तकारी, मुक्तकारी और अर्थकारी होना चाहिए। और इसका जो क्रियान्वयन है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पर ही निर्भर करता है। और इसके लिए हमारे कुलगुरु की ओर से मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि माखनलाल यूनिवर्सिटी इस पर बहुत ही कार्य कर रहा है और आगे भी सतत प्रयत्न करेगा कि हम लोग इसमें अच्छे से अच्छा करें और इसका जो क्रियान्वयन है वो सुचारू रूप से सबसे पहले हमारे द्वारा हो। जैसे हमने कोर्सों का जो है एनईपी के अंतर्गत कोर्स जो है वो स्टूडेंट्स को ऑफर कर दिए हैं, तो उसका बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे ही द्वारा हो। आशा करते हैं कि आगे भी आपका आशीर्वाद इसी तरह हमें प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुलगुरु को उद्बोधन के लिए, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करने के पहले सर का एक संक्षिप्त परिचय, बहुत ही संक्षिप्त जैसे सर की तरफ से आया है। तो आप वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, कुलपति हैं। इससे पूर्व आप भारतीय संचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक रह चुके हैं। स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के देहरादून के डीन के रूप में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। प्रोफेसर केजी सुरेश सर पहले डीडी न्यूज में सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, एशियानेट न्यूज नेटवर्क में संपादकीय सलाहकार और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मुख्य राजनीतिक संवाददाता भी रह चुके हैं। प्रोफेसर केजी सुरेश सर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद, सोसाइटी ऑफ सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, अनुसंधान समिति, सलाहकार परिषद,
दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, दिल्ली विश्वविद्यालय, अकादमिक परिषद, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, स्कूल बोर्ड ऑफ, एंड लिस्ट इज सो लॉन्ग एंड सर इज रिक्वेस्टिंग कि बस 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 हो गया। पर एक लास्ट बात मैं यहाँ जो बताना चाहूंगी, प्रोफेसर केजी सुरेश सर को हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। मैं सर को सम्मान आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से एक छोटी सी जिज्ञासा है। माननीय मुकुल कानेटकर साहब, सौभाग्य से इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शुरू करने के लिए आपका ही वरदहस्त और आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जो हम सबको एक दीक्षा की तरह था, और उसी उमंग के साथ हम लोग काम कर पाए। सौभाग्य से माननीय कुलगुरु सुरेश साहब थे, जिन्होंने पूरे समय इसको पुश किया और आज हमारे 7 कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट में आ गए हैं। एक छोटी सी जिज्ञासा जो कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग ला रहे हैं कि अभी तक जो गवर्निंग एजेंसीज है, स्टेट गवर्नमेंट की हो जाए, एआईसीटी हो जाए, यूजीसी हो जाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाए, वहां पर अभी भी कोहेरेंस नहीं बन पाया है। कई चीजों में बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप के नियम सामने आ रहे हैं। तो हमारी जो शंका है या हमारी जो कंसर्न है भाई साहब, वो ये है कि कल चल के जब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ट्रांसफर की बात आएगी या और चीजें आएगी, तो उन विद्यार्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़ सके, इसके लिए हम आपसे छोटा सा एक मार्गदर्शन चाहते हैं। थैंक यू। नहीं, एक्चुअल यदि पॉइंट बताएंगे तो फिर उसको उस तरह से उठाया जा सकता है। जैसे एबीसी आप मेरे को भेज सकते हैं चैतन्य जी, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से। जैसे एबीसी के बारे में एक विषय था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 जुलाई को एबीसी की घोषणा की, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की, किंतु जब यूजीसी ने उसके लिए नियम निकाले तो नियमों में लिख दिया कि केवल ए ग्रेड वाली यूनिवर्सिटीज के ही क्रेडिट ट्रांसफर हो सकेंगे, जबकि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सभी यूनिवर्सिटीज को लागू करना है। तो ये विषय हमने उठाया, मंत्री जी के सामने भी उठाया, तो मंत्री जी ने लिख करके देने को कहा है, हमने लिख करके अभी दिया है मंत्री जी को, तो हो सकता है उसमें ठीक हो जाए। तो ऐसे जहां पर विसंगति हमको दिखाई देती है वो बातें यदि आप हमारे पास में भेजेंगे, 3 मुद्दे लिख करके भेजने पड़ेंगे। एक तो एनईपी क्या कह रही है और क्या होना चाहिए और क्या किया गया है, ये यदि आप एक 3 कॉलम में भेजेंगे तो उसको सही मंच पर उठाया जाएगा। तो सुनते तो है ही, और सुनने के बाद में यदि अपना लॉजिक ठीक होगा तो मानेंगे भी, क्यों नहीं मानेंगे। मैं धन्यवाद। मैं माननीय कुलगुरु को निवेदन करता हूँ कि वो अपना आदेश। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, देश के विख्यात चिंतक, विचारक एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडल, परम श्रद्धेय मुकुल कानेटकर जी। आज के कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ममता अग्रवाल जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर शशिकला, एनईपी इम्प्लीमेंटेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य एवं 23 राज्यों से जुड़े 200 के करीब इसमें जो प्रतिभागी, आप सभी को नमस्कार। और आज विशेषकर बहुत ही पावन दिवस है। आज मध्य प्रदेश में हम लोगों ने विश्वकर्मा दिवस मनाया, और यही नहीं, आज जैसे यहाँ बताया गया, आज हम सबके लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके विजन
और मिशन का ही नतीजा है ये जो हमारे सामने जो प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हम सबके सामने आया, उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिवस भी है आज, तो इससे पावन अवसर हो नहीं सकता इस समापन सत्र में। और इतना सारगर्भित ज्ञानवर्धक उद्बोधन के बाद बहुत कुछ रह नहीं गया है। मेरे लिए तो हमेशा ये सौभाग्य का विषय रहा है कि विवेकानंद केंद्र के दिनों से ही मुझे माननीय मुकुल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, और इस विश्वविद्यालय में आने के बाद भी आपके उस प्रत्यक्ष उद्बोधन के साथ ही हमने एनईपी का काम विश्वविद्यालय में शुरू किया। और इस बीच में यहाँ एजुविजन, सार्थक एजुविजन का आयोजन भोपाल में हुआ, जिसमें हमारे सभी विभागाध्यक्षों ने और संकाय ने सक्रिय भागीदारी की और सभी सत्रों से, सभी विशेषज्ञों से बातचीत की, जिसके पश्चात चाहे वो पचौरी साहब हो या मजहर आसिफ साहब हो, देश के विख्यात शिक्षाविद और जो लोग भारतीय शिक्षण मंडल और एनईपी के ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े हैं, ऐसे महानुभावों का सानिध्य हमें इधर प्राप्त हुआ जब हम ये तैयार कर रहे थे। कठिन था क्योंकि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था कॉपी पेस्ट करने के लिए, हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं था, हम किसी भी विश्वविद्यालय से उठा के नहीं लगा सकते थे। यहां तक कि हाँ, ये संतोष का विषय है कि हमारे प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने ये तय कर लिया है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होगा, लेकिन ये फैसला आने से पहले ही हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में इसका काम शुरू कर दिया। जो मुकुल जी का जो संकल्प है कि ये शिक्षक के ऊपर है, विश्वविद्यालयों के ऊपर है, हमें यूजीसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें जो है अपने सरकारों का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमने नहीं किया, हमने अपने यहाँ जो है पूरी तैयारी कर ली। और क्योंकि हम प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अभिन्न अंग नहीं भी है, तो इसलिए हमने अपना एक स्वतंत्र पथ चुना। और जब इसका क्रियान्वयन हुआ तो सबसे अधिक खुश भी हमारे राज्य सरकार और विशेषकर उच्च शिक्षा मंत्रालय। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे उद्घाटन सत्र में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री स्वयं मौजूद थे और उन्होंने विश्वविद्यालय की तारीफ की कि हमने उसका क्रियान्वयन किया। हमने न सिर्फ करिकुलम तैयार किया, बल्कि हमने जब अपने एडमिशंस प्रवेश की घोषणा की तो सभी पाठ्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम्स, 1 नहीं 2 नहीं 7 पाठ्यक्रम हमने एक साथ घोषणा की, जिसमें 5 पाठ्यक्रम मीडिया से संबंधित विषयों को लेकर है। और मैं इसका पूरा श्रेय अपने विभागाध्यक्षों को और संकाय सदस्यों को देना चाहता हूं कि लगातार बैठकों का एक दौर चलता रहा, और उन दिनों तो हम लोग ऑफलाइन भी नहीं हुए थे, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से लगातार, और हमारे पास रेफरेंस के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। हमारा भी, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया माननीय मुकुल जी ने, कि हमारे सामने एक ही डॉक्यूमेंट था, वो 64 पेज का। उस डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर उसके लेटर एंड स्पिरिट को समझते हुए हमने जो है उसका क्रियान्वयन किया। और मुझे ये आपको सूचित करते हुए बहुत हर्ष होता है माननीय मुकुल जी कि 7वें पाठ्यक्रम में सीटें भर चुकी है
हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी डिमांड है। और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं क्योंकि इतने सारे अनुरोध हमें देश भर के विश्वविद्यालयों से आ रहे हैं, विशेषकर मीडिया पाठ्यक्रमों को लेकर, कि हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या डाला, कितने क्रेडिट्स दिए, कैसे क्रेडिट्स को मैनेज किया। और हमने जो नए इस जो भी हमें लगातार दिशा निर्देश यूजीसी से मिलते हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक आध विषयों को लेकर जिनका जिक्र प्रोफेसर अग्रवाल ने किया, अन्यथा हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम जानते हैं कि ये एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है, इसमें अभी आने वाले दिनों में वो लचीलापन होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमको भी रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम सफल हो पाएंगे। और अभी हाल ही में हमारे यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल, हम लोग आरजीपीवी में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, वहां के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जी के साथ हमारी बैठक हुई, जहां अब ये चर्चा हो गई और हमारी सहमति हो गई है कि हमारे यहाँ के कुछ पाठ्यक्रम उनके विश्वविद्यालय में और उनके यहाँ के कुछ पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में जेनरिक इलेक्टिव के रूप में हम लोग जो है ऑफर करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आज विशेषज्ञता का ये समय है, जिसको हम कहते हैं कि सुपर स्पेशलिटी का समय है। पत्रकारिता करते हुए भी पर्यावरण के क्षेत्र में को समझने के लिए या ऊर्जा के क्षेत्र को समझना आवश्यक है। तो आरजीपीवी में जो एनर्जी स्टडीज और एनवायरमेंटल स्टडीज का जो कोर्स है, उसमें जनरल इलेक्टिव का मॉड्यूल हमारे पत्रकारिता के विद्यार्थियों को मिलेगा, और वहां के जो इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनको हमारे विश्वविद्यालय में मोबाइल पत्रकारिता और ग्राफिक्स, एनिमेशन इत्यादि विषयों को लेकर उनको भी हम लोग मॉड्यूल्स प्रदान करेंगे। आज क्योंकि समय कंपटीशन का नहीं है, कोलैबोरेशन का समय है, कोऑपरेशन का समय है। किसी भी विश्वविद्यालय, विशेषकर राज्य विश्वविद्यालय, उसके पास सीमाएं हैं, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से। हम लोग उतने संकाय को नहीं लगा सकते हैं, हम लोग उस तरह विभाग नहीं खोल सकते हैं। तो ऐसे में आप आधा अधूरा या पार्ट टाइम संकाय को रखकर विद्यार्थियों के साथ अन्याय करने के बजाय पूरे देश भर से और विश्व भर से बेहतरीन पाठ्यक्रम हम उनको उपलब्ध कराएं, उसका क्रेडिट दें जेनरिक इलेक्टिव के अंदर। उसको देयर इज नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील, जो मौजूद है बेहतर तरीके से मौजूद है, बेहतर संस्थाओं में मौजूद है, उसको हम अपने विद्यार्थियों को प्रदान करें। इसी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। वाकई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये हम विद्यार्थियों को इसके अंतर्गत परीक्षा के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। We are not preparing our students for examinations or jobs, but to meet the challenges of life. हम उसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं। और टीचर से जो गुरु की यात्रा है, जहां मेंटरिंग, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब टीचर विल हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। कोई केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई विभाग इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन में उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभा सकती जितना एक शिक्षक की भूमिका रही। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके कई पहलुओं पर हमने डॉक्टर ममता जी से भी हमने सुना, और पिछले 5 दिनों में देश भर के विशेषज्ञ यहाँ आए, उन्होंने भी आपसे बात की। लेकिन मुख्य रूप से हमें समझने की आवश्यकता है
कि अब हम इस शिक्षा के माध्यम से हम उनके अंदर कुछ ऐसा गुण पैदा करना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों के अंदर जो समाज और विश्व के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसका समाधान निकाले। The focus is on critical thinking and problem solving. लोग सोचने पर मजबूर हो। The learning in the classroom, online, offline, should trigger the thought process in the students, जिससे कि वो सोचने में मजबूर हो कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, और मुझे बदलने के लिए क्या करना चाहिए। वहां शोध का महत्व होता है, इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रावधान है। शोध पत्रों का मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि हमारे विश्वविद्यालय में न सिर्फ हमने अपने पत्रिका जो 2 वर्ष से बंद पड़ी थी उसको दोबारा शुरू किया, बल्कि शोध के विषय में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने संकाय को भी लगातार वो शोध के प्रक्रिया से जुड़े रहे। हम चाहते हैं हमारे प्रोफेसर अग्रवाल जी जैसे हमारे जो संकाय हैं उन्होंने और भी अन्य लोगों ने भी यहाँ पेटेंट्स ले लिए हैं। मैं समझता हूं कि जब हम वैश्विक आज हम देखते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय में ग्लोबल रैंकिंग में हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं जब हम अपना RFRF के अंतर्गत हम RFRF में हम भी एक कोलैबोरेटर हैं, सहयोगी हैं, और उसके अंतर्गत हम लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी ही गुरु जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का जो RFRF के अंतर्गत शुरू कर रहे हैं, उसमें हम अपने विश्वविद्यालयों को हम सही उनका मूल्यांकन कर सकेंगे, क्योंकि जो पश्चिमी मापदंड है जो शुद्ध रूप से व्यावसायिक है उसके आधार पर हमारे विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसके लिए भारतीय मापदंड सुनिश्चित होंगे, नहीं तो आज भी हम देखेंगे 100-200 संस्थाओं में 1 या 2 भारतीय संस्थाओं को एक जगह मिलती है QS रैंकिंग और इत्यादि जो रैंकिंग्स है, क्योंकि उसमें ऐसे कई प्रावधान हैं जो भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, भारतीय संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे कितना मुनाफा कमाया, अब ये हमारे संस्थाएं, इवन जो निजी संस्थाएं हैं उनको जो है हम NGO के तहत चलाते हैं, तो मुनाफा तो हम दिखाई नहीं सकते कोई भी हमारे यहाँ। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मापदंड है। विदेशी आपके कितने विद्यार्थी हैं, तो चाहे बेहतरीन विश्वविद्यालय हो, माखनलाल चतुर्वेदी को इस बार इंडिया टुडे ने अपने रैंकिंग्स में 34वें रैंक पर रखा पूरे देश में, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक भी विदेशी संकाय या विदेशी विद्यार्थी नहीं है, होना चाहिए आगे चल के। जैसे माननीय मुकुल जी ने कहा, हमारे नए परिसर में जाने के बाद हमारा ये भी लक्ष्य होगा कि हमारे यहाँ विदेश से भी लोग पढ़ाने आए और विदेश से लोग पढ़ने भी आए, लेकिन अभी नहीं है, तो क्या उसका मतलब है कि हम आ नहीं सकते हैं रैंकिंग में? तो इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जिस पर बहुत काम हो रहा है, अलग अलग स्तर पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और ये वो समय नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी प्रतिभागियों का कि उन्होंने 5 दिवस इस महत्वपूर्ण विषय पर इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्वालिटी NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो आपने बिल्कुल सक्रिय भागीदारी आपकी रही और आपने इस आयोजन को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं AICT ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी, अटल एकेडमी को, कि वो लगातार हमारे विश्वविद्यालय को समर्थन देते हैं, और आगे भी आने वाले दिनों में एक और कार्यक्रम कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट का होने जा रही है अक्टूबर के महीने में, नवंबर में एक और अटल एकेडमी का कार्यक्रम हम जल्दी ही इसका घोषणा करेंगे, और वो भी NEP से ही
जुड़ा हुआ है, शब्दावली, टेक्निकल शब्दावली, और वो एक और कार्यक्रम है, वो भी हमने सोच रखा है। इस तरह बहुत सारे विषयों को लेकर हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और हमें समर्थन भी मिल रहा है। मैं अपने प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो मीडिया प्रबंधन विभाग और उसमें प्रोफेसर कंचन भाटिया, मनीषा वर्मा, कपिल और अन्य जितने सहयोगी हमारे विभाग के हैं, मीडिया प्रबंधन विभाग के, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया, जिससे हमने न सिर्फ शुरू किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने विश्वविद्यालय में, बल्कि हमने इसका संदेश पूरे देश भर में 23 राज्यों तक पहुंचाने का काम भी किया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने अपने विश्वविद्यालय में इसका पहल लिया। मैं सभी संकाय और विभागाध्यक्षों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और अंत में मैं आश्वासन देना चाहता हूं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि को कि हम आपके यूजीसी के, आरएफआरएफ के और अन्य संबंधित संस्थाओं के सतत मार्गदर्शन में देश के रोल मॉडल इंस्टीट्यूशन एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन में बनने का प्रयास करेंगे और आपका आगे भी इसी तरह सानिध्य और मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। आप सभी को, आपको, माननीय मुकुल जी को, डॉक्टर ममता जी को और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी भी कार्यक्रम को पार्टिसिपेंट्स के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता या उसको क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। तो अगर आप 23 राज्यों से हमारे साथ नहीं जुड़े हुए होते तो हम शायद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाते और कंडक्ट भी नहीं कर पाते। अभी मैं आप में से जो भी पार्टिसिपेंट्स अपने अनुभव इस एफडीपी से रिलेटेड साझा करना चाहते हैं तो मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आप अनम्यूट करके अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। मैम गुड इवनिंग, मैं बोल सकता हूँ क्या? आप में से कोई भी 2 पार्टिसिपेंट्स अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं सिर्फ केवल 2 को परमिट कर पाऊंगी सर, प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर रुद्रेश पांडे है मैम। मैं गाजियाबाद में एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर हूँ और आई वाज फॉर्चुनेट कि ये मेरी दूसरी एफडीपी है जो मैं आपकी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी करी थी और उसका कारण ये है, और इनफैक्ट इस सेशन में मेरी ये तीसरी एफडीपी है, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एफडीपीज जो मैंने करी और ये मेरा पिछली बार का भी एक्सपीरियंस था। सारे सेशन बहुत अच्छे से प्लान थे, जो टॉपिक्स थे वो बहुत अच्छे से कवर किए गए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक तो फिलोसफिकल और एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव लेवल पे बातें होती हैं, और दूसरी हमें एज अ टीचर कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है इस विषय पे बातें होती हैं। और ये दोनों हमें पूरा एक दिशा एक एजुकेशन की क्या होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, और दूसरी बात कि एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में, ये दोनों चीजों पे बहुत अच्छे से हमें ज्ञान मिला। यहाँ पे सारे सेशन बहुत अच्छे से प्लान थे, कोई भी सेशन का यानी टाइम चेंज नहीं हुआ, ना किसी सेशन का कोई जो रिसोर्स पर्सन थे वो चेंज हुए। तो ये सब दिखाता है कि आपका जो प्लानिंग है और जो क्वालिटी है आपकी यूनिवर्सिटी की वो बहुत ही अच्छी है। और मैं आपकी यूनिवर्सिटी से और भी जो आगे एफडीपी होंगी मैं उसमें आना चाहूँगा। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंडक्टिंग सच अ नाइस एफडीपी, and thanks everyone, and the quality of speakers were really very good। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आपकी एफडीपी में थी
कि वो स्पीकर्स ने बड़े अच्छे से यानी उस चीजों को एक्सप्लेन किया, बड़े पर्सनली क्वेश्चंस के जवाब दिए, बड़ा इन्वॉल्वमेंट सबका बहुत अच्छा रहा। तो ये सारी चीजें थी जो इस एफडीपी को बाकी एफडीपी से अलग बनाती हैं। सो थैंक यू फॉर द टीम, थैंक यू फॉर द लीडरशिप ऑफ योर यूनिवर्सिटी। यू हैव रियली हैव अ डायनामिक लीडरशिप। आपके वीसी सर और बाकी सब लोग बहुत ही, सर थैंक यू फॉर सच अ opportunity. Thank you, ma'am. Yeah, sir. May I start, madam? Yes, please. Thank you, madam. This is Dr. Chandrasekhar Patnaik, Omega PG College, Hyderabad. So at the outset, I thank you all for giving me the opportunity to share my views and feedback on this program. The great part of this program is when we read the session schedule, almost everything looked same. But when I actually attended the program, we could see what immense work has been done to present the situations by choosing the best of the best speakers who are very much competent enough in their own domain. So it has made a huge difference that NEP is not just a three-letter word. It is just a commitment for each and every from our side. We are all the partners of the education and not the stakeholders of the education. So with this, the program has went on very well. And the great thing I appreciate is the commitment and the dedication. And the organizers have created a WhatsApp group, and where every minute details, whatever time you post it, we are able to get the response, regardless of the time. And there are some of the participants who went there out of the way to help their co-learners also. So it has also built up a team spirit amongst us. And the beauty is that no resource person have been rescheduled or preponed or postponed. So as the word clearly says, Department of Media Management, such much media अच्छी तरह से manage किए हैं आप लोगों ने. So it is very nice, and the best part of is that all these programs are recorded and floated on the YouTube as it is. So it has become a role model for other NEP programs to conduct that directly. Those who could not attend, need not necessarily be the AICT permanent ID faculty members to attend the program. Anybody, I mean, any partner of education can simply click on that YouTube link and see what it is. So this is a great effort, and I appreciate the Makhanlal Chaturvedi National University, which is going to enter its 30th years of establishment. And I wish the good luck and look forward to have many more such programs in implementation of the national educational policy, that is Rashtriya Shiksha Niti 2020. Thank you so much, Ji. Thank you so much, sir, for your feedback. Communication is incomplete if the recipient is not respond well. So you all are equally responsible for the good communication, because you all are participated well. So we also tried our best, and you also given your best. So thank you very much, all the participants. Technical part